With said, I believe if your aim is to change the world, journalism is the most immediate and short term weapon. गुड आफ्टरनून। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था ही नहीं और मौजूदा स्थिति में कहीं दिख भी नहीं रहा है। भारत की पत्रकारिता में एक नफरत का बाजार फैलाया जा रहा है और जनता को इस बाजार का एक ग्राहक बना रखा है। इस भारत की पत्रकारिता को स्वर्ण युग में ले जाने के लिए 9 साल पहले मई 2015 में शुरुआत हुई इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट द वायर की। द वायर की पहचान बताने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ बैठा हर कोई द वायर से प्रचलित है। And as a journalism student, every one of us are aware of the independent news outlet, The Wire. And it's our pleasure to have Mr. Siddharth Vardarajan, sir, founding editor of The Wire. We are pleased and grateful to have you, sir. एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। With Vardarajan, sir, chair is shared by Nitin Brahme, sir, journalist BBC, and Dr. Rekha Sheke, ma'am, Dean Social Science Department, MGMU, as well as Principal of College of Journalism and Mass Communication. I request Dr. Rekha Sheke ma'am to welcome Vardarajan sir. I also request Rekha Sheke ma'am to honor Nitin Brahme sir. In 1965 to an IS officer, Vardarajan sir completed undergrad from London School of Economics. Also, sir is an alumni of prestigious Columbia University. In 1995, Vardarajan sir returned to India to work as journalist before joining the Times of India. In 2011, sir was appointed as the editor of English language of National Daily, The Hindu. In 2015, Vardarajan sir, along with Siddharth Bhatia and M.K. Vedu, founded online news portal The Wire. Nitin Brahme, sir, freelance and senior journalist. He also writes column in renowned newspapers. He worked at Sakal, Aaj Ka Anand Hindi newspaper and was correspondent at Times Group. He runs a YouTube channel named The Encounter, where he covers videos on politics, defense, social and cultural activism. We are lucky that we get such a great place for beginning of our journalism journey in the form of Mahatma Gandhi Mission's College of Journalism and Mass Communication. So, CJMC has been nurturing young and upcoming generation of journalism Ganesh. from last 3 decades, offering multiple courses from undergrad in international journalism, electronic media, and mass communication in journalism, as well as postgrad in broadcasting media and MCJ. Communalism begets communalism. Ultimately, none gains, all lose. When communalism thinking holds sway over us,
Without any delay, I call upon Siddharth Vardharajan sir to share his thoughts on role of journalists in combating communalism in India. But I received email invitation from Dr. Shelke. I was very happy because I was due to be in Aurangabad today anyway for a talk which I'm going to give in the evening. But what made me very pleased was the topic that she suggested. Because at a time when the media is busy promoting communalism in India, to have a university wanting to tell its students how to do the opposite was something very striking. And it's a sad commentary on the state of affairs in India that this struck me as unusual and odd and rather refreshing. Because ordinarily 10 years ago, 20 years ago, there would be plenty of such talks. Because the media construed its main role as opposing polarization, communalism in society, promoting constitutional values. So there was nothing extraordinary or exceptional about speaking about these things. But today it feels almost illicit, feels slightly disruptive, feels slightly anti-national, to use the phrase that they use, to talk about opposing communalism. Now, having said this, and having said that it's important that the media look at this topic and play its role, it's important to always bear in mind, especially all of you who are going to be entering the profession once you finish your studies here, you'll be entering the profession of working as journalists, that the role of a journalist is very different from the role of an activist. Journalists are citizens. They live in society. They have their own views. They have their own ideological leanings, their political affiliations, like anybody in society does. And it is unrealistic and unfair to demand that journalists be some kind of a pure person who has no views, who has no ideology, and is some kind of a machine. That's not what life is. So all of you, all of us, we have our views. We have our beliefs about what is right, what is wrong, in the sphere of politics, in the sphere of culture. These views may not be very coherent. These views may not be very crystallized. These views may not lead you to unequivocally support one party or another party, but you have your views. And the job of a journalist is to report accurately what is happening. And part of that process is to be able to dispassionately evaluate facts, dispassionately provide perspective to your readers or viewers about what's happening, and tell a story that is accurate and true, and that is also intelligible, readable, or appealing, so that somebody would want to spend 5-6 minutes of their time reading what you write or producing whatever video you produce. This is the job of a journalist. And this applies to whether we're talking of foreign policy issues, whether it's talking about urban issues. You may be in a situation where you live in a certain mohalla, you live in a certain neighborhood, and the neighborhood has a problem with, let's say, waste disposal. The garbage is not being collected, or it's being thrown in a very haphazard way. And people in the
people in the neighborhood have certain very fixed views that ever since the MLA got changed from party A to party B, things have got worse. And maybe you also believe that. नहीं, तो which is better, English or Hindi? हाँ, मतलब तो मैं दोनों में यदि शाम को मैं हिंदी में व्याख्यान देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मिली जुली देता हूँ, तो one may think that problem is caused by certain you may have a certain view, but when you start investigating the story, you have to have the courage of conviction and the integrity that if the facts you uncover, it emerges that the story is something else. That it's not this particular MLA who is at fault, but some other reason. कि state government के funding pattern में कोई allocation इधर से उधर हो गया, जिसके बाद जो है वो garbage collection रुक गया, MLA का इसमें role नहीं था, whatever. I'm giving a very trivial example, and a non-emotional one, because these are not topics in which we are that committed or that invested. But the facts may take you in a different direction. आपका सोच कुछ और है, आपका assumption कुछ और है, और हकीकत या तथ्य कुछ और है, और as a journalist आपका फर्ज बनता है कि आप तथ्यों के आधार पे इसको स्टोरी को बनाएंगे. Now you can imagine how important this principle is when it comes to the issue of stories which have an impact beyond a narrow location. तो आपकी ये जो गार्बेज वाला स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, सैनिटेशन वाला, आपका स्टोरी सही हो या गलत, उसका इम्पैक्ट सीमित है. एक मोहल्ले तक या शहर तक उसका और ज्यादा बड़ा रिपरकशन नहीं है. लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे स्टोरीज हैं, खास तौर पे जो सांप्रदायिकता से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, जिसका अगर एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर उसको हम प्रेजेंट करें, अगर तथ्यों का उल्टा सीधा इवैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन अगर हम करें, तो not only can the story be damaging to the people that you are reporting about, लेकिन उसके और बड़े और खतरनाक पहलू हो सकते हैं. मैं आपको मिसाल देता हूं. आप में से कितने लोगों ने गुजरात 2002 के नरसंहार के बारे में पढ़ा है? जो गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में, लगभग आप सब में से आप सभी लोग उससे फेमिलियर होंगे. ये घटना फरवरी 28 से लेके तकरीबन मिड अप्रैल तक, लेकिन जो इंटेंस वायलेंस था वो मार्च 7th 8th तक 10 दिन गुजरात प्रदेश में चली. और इसके चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1300 लोगों के आसपास उनका कत्ल हुआ. अनऑफिशियली लोग कहते हैं कि 1600 1700, लेकिन अगर हम सरकारी फिगर मान के चले तो 1300 के आसपास लोग मारे गए. अब उन दंगों से पहले गोधरा स्टेशन से करीब वहां पे एक रेलगाड़ी की डिबिया जलाई गई. उसको साबरमती एक्सप्रेस बोलते हैं. और ये साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या फैजाबाद से वापस गुजरात आ रही थी. गाड़ी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सो कॉल्ड कार सेवा के लिए मोबिलाइज किया गया. और वो जिस सवेरे लौटे गोधरा स्टेशन में, वहां पे कोई झड़प हुई, पथराव हुआ,
और एक रेल की डिब्बिया S6 साबरमती एक्सप्रेस का, वो रेल की डिब्बिया जलाई गई। और उस फायर में 59 लोग, बेगुनाह लोग, बेकसूर लोग मारे गए, जिसमें 10-12 बच्चे थे, औरतें थी, आदमी थे, और उनको मतलब they died of fire and asphyxiation. अब जैसे ही वारदात, ये घटना घट रही थी और उसके तुरंत बाद सरकार की ओर से ऐलान आया कि ये प्री प्लान्ड टेररिस्ट अटैक है, और टेररिस्ट अटैक, जाहिर है कि जो ट्रेन के मुसाफिर थे वो हिंदू थे, और जो हमलावर थे, हमलावर में गोधरा के मुसलमान कुछ लोग उसमें शामिल थे। तो ये फौरी तौर पे इसको एक कम्युनल इंसिडेंट, टेरर इंसिडेंट, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तौर पे पेश किया गया सरकार की ओर से। और जैसे ही सरकार ने इसका बयान दिया, तो जाहिर है कि रिपोर्टिंग भी शुरुआत में इस दिशा में गई, और उसके चलते बहुत सारे ऐसे सवाल जो पत्रकार को पूछना चाहिए था, वो पूछे नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल, बताया गया उन दिनों में, और ये खूब, वैसे सोशल मीडिया इतना प्रचलित नहीं था 2002 में, बल्कि ट्विटर वगैरह अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ये बातें फैलाई गई अफवाहों के जरिए कि रेलगाड़ी की S6 को बाहर से लॉक करके फिर आग जो है उसमें the coach was set on fire and people were prevented from getting out and they died because of this pre-planned conspiracy जो है वो 7-8 दिन पहले रचाई गई, और एक पूरा एक कहानी बताई गई जिसको मीडिया वालों ने इतना फॉलो नहीं, मतलब कि जो सरकारी सूत्रों से मिल रहा था उसी का जो का त्यों रिपोर्ट करते गए। और बाकी जो अहमदाबाद शहर के अंदर दूसरे जो गुजरात के शहरों में जो वायलेंस, हिंसा हो रही थी, जहां पे मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा था, उसकी भी रिपोर्टिंग हो रही थी। और उस रिपोर्टिंग में बहुत सारे अखबारों ने, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने, खासतौर पे NDTV ने इस बात को पकड़ लिया और इसका सबूत भी पेश किया कि पुलिस कहीं पे भी मौजूद नहीं थी, पुलिस ने किसी की मदद नहीं की। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। गोधरा कांड मैं इसलिए रेज कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक फिल्म बनी है, शायद अभी तक वो फिल्म पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसका कुछ ट्रेलर और कुछ चीजें मैंने इंटरनेट पे देखा, और वहां पे जो है लोग कह रहे हैं कि जी रेलगाड़ी की डिब्बिया को बाहर से लॉक किया गया। अब आप में से कितने लोग ट्रेन में जा चुके हैं अपने लाइफ में? लगभग सभी। ये बताइए कि क्या ट्रेन की गाड़ी बाहर से लॉक हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। सिंपल फैक्ट जो हर इंसान को पता है, लेकिन उन दिनों के अखबारों में, उन दिनों की मीडिया में, और आज भी जो है सोशल मीडिया पे आपको ये बात मिलेगी कि भाई ये बाहर से लॉक था। तो अगर कोई गाड़ी बाहर से लॉक नहीं हो सकती, तो बाहर से ये कौन कह रहा है कि बाहर से लॉक हो गया? ये झूठ को फैलाया जा रहा है। दूसरी बात, मैं आज तक, और मैं बारीकी से उस गोधरा फायर कांड में गया हूं एज ए रिपोर्टर, और मैं आज भी कह सकता हूं कि आग कैसे लगी, कैसे फैली, इन टर्म्स ऑफ द साइंस ऑफ इट, द मैकेनिक्स ऑफ इट, आज भी मिस्ट्री है। क्योंकि पुलिस के मुताबिक वेस्टिब्यूल को काट के, मतलब कि ट्रेन जो है वो ट्रैक्स पे रुकी हुई थी, और जो कंस्पिरेटर्स थे उन्होंने वेस्टिब्यूल जो एक बोगी को दूसरे बोगी से जोड़ता है, रबर का बना हुआ होता है, तो पुलिस का कहना है कि वो वेस्टिब्यूल को काट के 6-7 लोग घुसे, उनके हाथों में पेट्रोल के कनस्तर थे, और पेट्रोल के कनस्तर को उन्होंने ऐसे फेंका जमीन पे।
और फिर उस पे उसको सेट फायर किया। तो सुनने के लिए तो ये अच्छी कहानी है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आई आस्क्ड माय सेल्फ, अच्छा जब ये सब हो रहा था तो S6 गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? 59 लोग मरे, लेकिन बोगी के अंदर 150 से ऊपर लोग थे। गाड़ी चकाचक थी क्योंकि बगैर रिजर्वेशन के लोग चढ़ गए थे उस पर। अब 72 सीटों वाली बोगी में अगर 150 लोग मौजूद हैं तो आप खुद समझिए कि जो ऑयल फेंका जा रहा है वो कैसे इतनी तेजी से जमीन पे स्प्रेड हो सकता है। हर बोगी का कॉरिडोर इतना नैरो होता है, वही एक रास्ता है जिसके थ्रू लिक्विड जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कोर्ट में और पुलिस केस में एक भी मुसाफिर ने, एक भी पैसेंजर ने ये बयान नहीं दिया कि हाँ हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो अंदर आए और जिन्होंने कनस्तर के थ्रू तेल फेंका। लेकिन इस सवाल को कोई जर्नलिस्ट नहीं उठा रहा है। और एक जो है कहानी गढ़ी जा रही है। मैं ये नहीं, मतलब उसमें 59 लोग मरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हिंदू थे, इसमें कोई दो राय नहीं थे। उनका मरना या उनका कत्ल नाजायज था, कोई दो राय नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्राइम था, सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन कैसे हुआ? Was it a pre-planned conspiracy जिसको पुलिस स्टोरी के थ्रू के थियरी के मुताबिक अंजाम ऐसे दिया गया कि ट्रेन में घुस के 8 लोगों ने पेट्रोल फेंका? लेकिन अगर वो कहानी सही है तो जिन सवालों को मैं उठा रहा हूं उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। या कोई और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस थे, थोड़ा सा एक्सीडेंट, बाहर से लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हो सकता है कि एक आग से लिपटा हुआ एक पत्थर का जो एक काकड़ा जो है वो बोगी के अंदर गिर के किसी चीज को तो क्या। और ये सवाल इसलिए जायज है क्योंकि अगर रेल की बोगी इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से आग से जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो ये हर मुसाफिर के लिए, हर ट्रेन पैसेंजर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, रेलवे सेफ्टी का। तो एक प्रश्न जो पैसेंजर सेफ्टी, रेल सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, 5-6 उसके पहलू हैं। इसको एक रिड्यूस किया गया कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है, प्री प्लान कंस्पिरेसी, और इसके चलते फिर और उसको इसलिए बताया गया ताकि 1200-1300 लोगों का जो कत्ल हुआ स्टेट में उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए। जैसे 1984 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि आपकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन इस साल जो है, इस नवंबर को, it was the 40th anniversary of the massacre of Sikhs in Delhi in 1984. 1984 में, अच्छा आप में से कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, जिन्होंने नवंबर 1984 के कत्लेआम के बारे में पढ़ा होगा? एक भी नहीं। आप लोगों को मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान की राजधानी में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिख नागरिकों पे हमला हुआ, लगभग 3000 लोगों का कत्लेआम हुआ 3 दिन में। और कत्लेआम इसलिए हुआ क्योंकि उन दिनों की रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये चाहा कि सिखों को एक तरह से दे शुड बी टॉट अ लेसन, क्योंकि इंदिरा गांधी का कत्ल जो है सिख बॉडीगार्ड ने किया। 3 दिन के लिए पुलिस ने हुड्डों को खुला छूट दिया और बहुत बेरहमी से सारे शहर में सिखों को चुन चुन के निकाल के मारा गया। पंजाब से कुछ ट्रेन्स आ रही थी, ट्रेन्स को बॉर्डर पे रोक के सिख पैसेंजर्स को निकाल के मार दिया गया। और उन दिनों के जो प्रधानमंत्री थे, नए बन के आए थे, उनका बयान दिसंबर 1984 में जब उनसे पूछा गया कि भाई ये कैसे हुआ आपके देख रेख में, जैसे नरेंद्र मोदी से भी पूछा गया कि कैसे हुआ,
तो 2002 के बारे में। तो राजीव गांधी का जवाब था कि भाई जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये लॉजिक जो है प्रधानमंत्री ने दिया। ठीक उसी तरह गुजरात के मुख्यमंत्री ने उन दिनों बयान दिया कि भाई जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया मतलब गोधरा कांड, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। अब एज ए जर्नलिस्ट हमारे लिए चुनौतियां क्या है कि आप उनको, इन चीजों को फेयरलेसली आप इसको रिपोर्ट करें। 1984 में आप हैरान होंगे कि जो सच्चाई सड़कों पे साफ दिख रही थी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने गुंडों को गुंडों को ऑर्गेनाइज करके पुलिस की देखरेख में सिखों को चुन चुन के मार रही थी, ये सच्चाई सड़क पे साफ दिख रही थी। पत्रकार घूम रहे थे, लेकिन उन दिनों के अखबारों में आपको ये हकीकत नहीं मिलेगा। ट्रेन से जो पैसेंजर्स को उतारा गया और उनका कत्ल किया गया, ये बात आई अखबार में कि ट्रेन पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम पंजाब वर टेकन ऑफ द ट्रेन एंड किल्ड। अगर आप हिंदू हैं दिल्ली में और आपने ये पढ़ लिया कि पंजाब से गाड़ी आ रही है, उसमें मुसाफिर को धर्म के बेसिस पे निकाल के मारा गया, आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि भाई हिंदुओं को निकाल के कोई मार रहा है। पंजाब का जिक्र आ गया उसमें, पंजाब से आपके दिमाग में आ गया कि भाई सिखों का वहां सिख रहते हैं। हकीकत ये था कि भाई सिख पैसेंजर को हुंडे निकाल के मार रहे थे, लेकिन क्योंकि अखबारों में ऐसी रिपोर्टिंग नहीं आई, अखबारों में आया कि भाई एक वर्ग, एक समुदाय विशेष के लोगों को मारा गया। इससे किसी पाठक को क्या पता चलेगा? इससे भय पैदा होगा, इससे भ्रम पैदा होगा, संदेह पैदा होगा। तो एज अ रिपोर्टर, एज अ एडिटर, दीज आर ऑल क्वेश्चन दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। हाल ही में केसेस चल रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे केसेस आपने पढ़ा होगा 7-8 महीने पहले, जहां पे एक आदमी ने अपने गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और फिर शरीर के अलग अलग अंग करके सूटकेस में डाल के किसी जंगल में फेंक दिया। ठीक है, अच्छा, अब अखबार अगर आप देखेंगे, एक साल से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान में ऐसे 20-25 ऐसे केस होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी केस में कातिल का नाम हेडलाइन में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कातिल जो है, इट हैपेंड, इत्तेफाक से इस केस में कातिल जो है मुसलमान था, प्रेमिका या जिसको मारा उसने वो हिंदू लड़की थी। तो जो एक सोशल क्राइम है हमारे देश में, एक पेट्रियार्कल कंट्री में, जहां पे मतलब औरतों पे वायलेंस एक तरह से जायज ठहराया जाता है, और इसकी एक सीमा तक अगर कोई इसको ले जाता है तो कोई किसी का कत्ल भी कर लेता है, उसको लगता है कि मैं अपने आप को बचा लूंगा। ये सामाजिक बीमारी है हमारे। इस सामाजिक बीमारी को नजरअंदाज करते हुए आपने इसको एक कम्युनल इशू में पेश किया। शायद उस लड़के का नाम था अफजल, मैं भूल गया हूँ। आफ्ताब, देखो अभी तक आपको याद है, अभी तक आप लोगों को याद है, जबकि हिंदुस्तान में पिछले एक साल में 20,000 मर्डर हुए होंगे, शायद एक भी मर्डर का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन इसका नाम हमको याद है क्योंकि मीडिया ने खूब इसको उछाला है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने पाठकों के मन में और दर्शकों के मन में ये चीज गाड़ने की कोशिश की कि भाई एक मसला देखो कितना और इससे मतलब इनका यही था कि भाई आफ्ताब को मिसाल बना के आपने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना है। इरादा आपका ये है, और ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि ये इरादा जो है किस सियासी सोच से आ रहा है, किस पॉलिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे आपने ये इस इरादे को अंजाम या इसको प्रमोट किया।
लेकिन हमारे चैनल जो हैं इस चीज को खूब इसकी रिपोर्टिंग होती है। जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला केस है, जब जजमेंट आया, अब ये केस है जो कई सालों से अदालत में था। 1992 में एक इमारत जो मस्जिद थी उसको एक इलीगल तरीके से डिमोलिश किया गया, तोड़ा गया, और फिर वो कचहरी में बाद एक क्रिमिनल केस लगा, एक सिविल केस था। मैं केस की बारीकियों में नहीं जा रहा हूं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एज ए रिपोर्टर, एज एन एडिटर, जिस दिन वर्डिक्ट आता है आपको ऑब्जेक्टिवली इस चीज को एनालाइज करना वो आपका फर्ज बनता है। उस दिन आप पत्रकार हैं, आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, आप राम भक्त नहीं हो, आप कृष्ण भक्त नहीं हो, लेकिन हमारे सारे चैनल जो हैं उनको लगा कि ये मतलब उन्होंने इस केस को ऐसे रिपोर्ट किया, ऐसे इसकी कवरेज थी, और आज भी जो अलग अलग हिंदुस्तान के हर कोने में अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप अब एक डिस्प्यूट का जरिया बन गया है कि कहीं किसी भी मस्जिद पे आप कह रहे कि यहाँ हमको अवशेष मिल रहे हैं शिव जी के, हनुमान जी के, यहाँ खुदाई होनी चाहिए। परसों एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत मजेदार कार्टून छपा कि दो औरतें बात कर रही हैं आपस में, और एक औरत कह रही दूसरी से कि हाँ इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या किया जाए। तो दूसरी औरत कहती है कि मेरे पति को इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो पहली महिला कहती क्या इज ही इकोनॉमिस्ट? तो वो जवाब देते नहीं, ही इज आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब कि आप खुदाई शुरू करो, डिस्प्यूट पैदा करो, तो फिर बेरोजगारी का सवाल जो है वो लोग भूल जाएंगे, महंगाई के जो मसाइल हैं लोग भूल जाएंगे, सोल्यूशन इसी में। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो चैनल हैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। एक और मतलब इसमें मिसाल पे मिसाल आदमी दे सकता है। मैं एकदम रिसेंट, और मैं पर्सपेक्टिव की बात, मतलब कि देखिए फैक्ट्स जब आप रिपोर्ट करते हो उसके साथ जो पर्सपेक्टिव है वो एक नजरिया बहुत जरूरी होता है। आपने पढ़ा होगा बांग्लादेश में हाल ही में एक इस्कॉन मतलब कि हरे कृष्णा मूवमेंट का जो कार्यकर्ता है, ये अलग बात है कि हरे कृष्णा वालों बांग्लादेश में उन्होंने इसको अब कह रहे हैं कि हमने इसको निकाल दिया, ये हमारा बंदा है ही नहीं, लेकिन उस बात छोड़िए, मतलब मतलब एक हरे कृष्णा डिवोटी या एक इसको लीडर बोल दे, जो भी बोलते हैं, इनके खिलाफ बांग्लादेश में केस दर्ज हुआ सेडिशन का, और इस पे हमारे पार्लियामेंट में जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, अलग अलग मंत्री बयान दे रहे हैं, मीडिया में जो है चर्चा हो रही है कि भाई देखिए इस कौन हिंदू बांग्लादेशी पे सेडिशन का मुकदमा लग गया है। क्यों लगा है? क्योंकि, और ये भी मतलब कि लगता है ये साउथ एशिया में बीमारी है कि वहां पे बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज था और इन्होंने भगवा ध्वज को किसी ज्यादा ऊंचाई पे बाउंड किया। मेरी नजरों में ये कहीं से राजद्रोह का केस नहीं बनता, मतलब हिंदुस्तान में भी ऐसे केसेस दर्ज हो जाते हैं बाय द वे, लेकिन इन पे राजद्रोह का केस दर्ज हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और इसका खंडन, इसका कंडेमनेशन जायज है, इसकी रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। लेकिन ठीक उसी दिन जिस दिन बांग्लादेश में ये कांड हुआ या ये गिरफ्तारी हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बयान दिया कि हिंदुस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट, उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, वो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं, आप में से कई लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बयान दिया कि इनके खिलाफ हमने सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता जो
पुराने आईपीसी के सेडिशन से मिलता जुलता सेक्शन है, हालांकि राजद्रोह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन पुलिस ने कंफर्म किया कि हमने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस दर्ज किया है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रभुता के खिलाफ काम कर रहा है, सेडिशन। एक दिन में एक हिंदू पे मुकदमा बांग्लादेश में, ठीक उसी दिन एक मुसलमान पत्रकार पे मुकदमा इंडिया में। किस इंसिडेंट को हिंदुस्तान के मीडिया ने ज्यादा अहमियत दी? मतलब बांग्लादेश जो है वो सुर्खियों में छाया रहा शाम तक, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जो, अच्छा, और मोहम्मद जुबैर का केस, अगर आप उस केस में के डिटेल में जाएंगे, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि बांग्लादेश के जो हिंदू नेता हैं उनके खिलाफ केस गलत केस है। मेरी नजरों में ये कोई केस नहीं है कि किसी ने झंडा थोड़ा ऊंचा कर दिया, नीचे कर दिया, ऐसे ये राजद्रोह कैसे होता है? एट बेस्ट आप कह सकते हो कि फ्लैग कोड का वायलेशन है, ऐसे कुछ आप केस बना सकते हैं, लेकिन राजद्रोह तो कहीं से नहीं बनता। ठीक उसी तरह मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस ये था कि गाजियाबाद क्षेत्र में एक नेता है, अपने आप को हिंदू और अपने आप को धार्मिक गुरु क्लेम करते हैं, उनका नाम है यति नरसिंह आनंद। ये है तो पक्के पॉलिटिशियन, लेकिन जो है वो भगवा कपड़े पहन के अपने आप को किसी और चीज के रूप में पेश करते हैं। तो नरसिंहानंद पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तान से मुसलमान चले जाए अच्छा रहेगा, यहां तक कि मुसलमानों का कत्लेआम हो तो अच्छी बात होगी। ऐसे ऐसे खतरनाक बयान ये आदमी दे चुका है, और बंद कमरों में नहीं, वीडियो में दे चुका है, खुले मंच पे दे चुका है। इनके वीडियोस आपको मिल सकते हैं बहुत आसानी से इंटरनेट पे। तो सितंबर 29 को उन्होंने एक और ऐसी भाषण, आपत्तिजनक भाषण कहीं पे दी, उसकी रिपोर्टिंग हुई और लोगों ने कहा कि भाई इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ, या शायद हुआ भी। तो 3 अक्टूबर को मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट लगाया जहां पे उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार से कैसे हम उम्मीद कर सकते कि वो एक्शन इसके खिलाफ लेगा, जब इससे पहले इतने स्पीचेस दे चुका है जहां पे कोई एक्शन नहीं ली गई। और उन्होंने मिसाल के तौर पे यति नरसिंहानंद का एक पुराना भाषण जो इंटरनेट पे है, उसका लिंक ट्वीट पे दिया। उस ट्वीट के बेसिस पे नरसिंहानंद पे केस नहीं हुआ, केस हुआ मोहम्मद जुबैर पे, क्योंकि नरसिंहानंद के किसी सपोर्टर ने जाके किसी थाने में दर्ज कर दिया कि ये तो हमारे गुरुजी का अपमान हो रहा है वगैरह वगैरह, तो केस दर्ज हो गया। और धीरे धीरे ये केस, जो केस ही नहीं है, केस अगर बनता है तो नरसिंहानंद के खिलाफ बनता है कि आपने ऐसा बयान कैसे दिया। धीरे धीरे 2 महीने के बाद ये मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस जो है ये राजद्रोह का केस हो गया। तो ये हिंदुस्तान का हकीकत है कि जो कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता फैलाता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो सांप्रदायिकता का पर्दाफाश करता है, एक्शन उस पर लिया जाता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं जो मेरा पर्सनल अपना इन्वॉल्वमेंट है। ये 2000, मेरे अपने 2 मिसाल देता हूं मैं। 2001 की बात है ये, 1999, माफ कीजिए। उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था। अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों प्रधानमंत्री थे। यूपी में किसकी सरकार थी मैं भूल रहा हूं, लेकिन मथुरा आगरा बेल्ट में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ जो एक्टिविस्ट हैं, उन दिनों वहां के कुछ क्रिश्चियन संस्थानों पे हमला हो रहा था। किसी पादरी की पिटाई हुई, किसी नन पे हमला हुआ, तो उसको कवर करने में वहां पे मुझे भेजा गया। तो दिल्ली से मैं गया मथुरा, और मथुरा, अच्छा, दिल्ली में जो है, जो बजरंग दल और संघ परिवार के जो बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि भाई इन इंसिडेंट्स में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये कोई और कर रहा है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मथुरा में जब हम गए तो वहां पे लोकल जो हिंदुत्व संगठन के कार्यकर्ता हैं,
जब मेरी उनसे बात हुई तो वो खुल के कबूल कर रहे हैं कि हाँ ये सब हमने किया है, और 2-4 और लोगों की पिटाई करेंगे। तो इस खबर को हमने फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा के भाई बजरंग वाले खुद कह रहे हैं कि मथुरा से हम क्रिश्चियंस को भगाएंगे। हमने समझा कि भाई इस हेडलाइन के बाद कम से कम केंद्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी ताकि ये हमले रुक जाए। लेकिन मुझे नोटिस मिला नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए, तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज से मुझे नोटिस मिला कि शो कॉज नोटिस, कि आप हमको बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐसी खबर छापी जिससे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी भयभीत हो रहे हैं। अब बताइए, हमला कोई कर रहा है, हमलावर जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं की जा रही है, उल्टा हमलावर ढंडोरा पीट के कह रहा है कि मैं और ऐसे काम करूंगा। इस चीज को जब हम हाईलाइट करते हैं तो माइनॉरिटी को भयभीत करने वाले हम हो जाते हैं, वो नहीं होता है। तो हमने उस नोटिस को ठुकरा दिया और एनसीएम के पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि कोई केस वगैरह दर्ज हो। लेकिन अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं 2020 या 2019 या 20, जब गाजियाबाद में एक कांड हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो चला खूब ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि एक एल्डरली एक मुस्लिम जेंटलमैन कुछ गुंडों ने पकड़ के वीडियो में उसकी दाढ़ी नोच रहे थे और उसकी पिटाई हो रही थी, और उस ओल्ड मैन ने बयान दिया कैमरा पे कि भाई इन गुंडों ने मुझे पकड़ा, मारा, पीटा, दाढ़ी नोची और मुझसे बोले कि बोलो जय श्री राम। तो इस ओल्ड मैन के बयान के बेसिस पे और उस वीडियो के बयान के बेसिस पे बहुत सारे अखबारों ने स्टोरी बनाई कि भाई ये शख्स बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हमला हुआ है। ये एक विक्टिम है जो अपना बयान दे रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। स्टोरी फैली, राज्य सरकार को शायद अच्छी नहीं लगी, उनको लगा कि ये बहुत बुरा पब्लिसिटी है, तो उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद लोनी पुलिस स्टेशन में जाके केस फाइल किया। कौन सा केस? सेक्शन 153, स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड। और ये केस उन गुंडों के खिलाफ नहीं था, ये केस 8 लोगों के खिलाफ जिन्होंने उस वीडियो को ट्वीट किया या शेयर किया, और इत्तेफाक से या ऑब्वियसली नॉट अ कोइंसिडेंस 8 में से 7 लोग मुसलमान थे। हालांकि 2000-3000 लोगों ने ट्वीट किया और अधिकांश लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन 7 मुसलमानों को चुन के उनके खिलाफ केस दर्ज किया और 8वां था मैं दोबारा। और हमने कहा कि इसमें 153 का केस कैसे बनता है? एक विक्टिम ऑफ क्राइम जो है वो अपना बयान दे रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ है। और यही बात अगर बांग्लादेश में हो जाती, अगर कल कोई बांग्लादेश का रिपोर्टर उस हरे कृष्णा वाले का बयान छाप दे और अगर रिपोर्टर के खिलाफ केस बांग्लादेश में दर्ज हो जाए, तो यहाँ पार्लियामेंट में शायद प्रधानमंत्री स्वयं बोलेंगे कि अन्याय हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है चला ये, और 4 साल हो गए, वो केस अभी भी है, वो उसको हम क्वाश नहीं कर पाए। हिंदुस्तान में ये केसेस जो लटके रहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप रिपोर्टर होना चाहते हैं आज के मौजूदा हालात में, यू नीड करेज, you need integrity, you need honesty, you need also to have the courage to, as I began, कि बाज दफा जो है स्टोरी अलग है, आपको कुछ और लगता है। कुछ लड़कों ने ट्वीट किया 3 महीने पहले कि उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में किसी मुस्लिम लड़के का मॉब लिंचिंग हुआ। हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने कहा कि भाई वायर इस चीज को क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहा है। तो हमने थोड़ा सा पता किया और वहां से हमको खबरें कुछ और मिल रही थी कि भाई लड़का मारा गया,
लेकिन वो एक मॉब लिंचिंग नहीं था, वो कुछ और चीज थी। तो हमने अपने रिपोर्टर वहां पे भेजे और स्टोरी हमने किया कि भाई लड़का तो मरा, लेकिन ये मॉब लिंचिंग इसको हम नहीं कह सकते। तो ये भी एक ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में एक नैरेटिव है कि फलाने वजह से ये हुआ है, लेकिन हो सकता है कि फैक्ट्स कुछ और है। वो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इसमें बाज दफा और अक्सर अपना खुद का इमोशन, आपकी खुद की आइडेंटिटी आपको सब्ज्यूम करना पड़ेगा, ताकि फैक्ट्स को आप एक ऑनेस्ट तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर पाए। और अगर आप ये काम करते हैं तो जाहिर है कि कभी कभी आपको खतरे मोलने पड़ेंगे। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहां पे पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। अगर मैती पत्रकार खबर छापने की कोशिश करे कि मैती मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कुकीज को मार रहे हैं, तो मैती पत्रकार पे हमला हो सकता है। मैं कुछ लड़कों को जानता हूं जो वहां से निकल चुके हैं, क्योंकि उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। तो ये एक खतरा है जो आपको जूझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जर्नलिज्म को क्रिमिनलाइज करने की बहुत कोशिश की जाती है। एक जमाना था कि आपने स्टोरी की, स्टोरी जो है वो गलत साबित हुआ या उसमें कोई फैक्चुअल एरर था, सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन आता था, वो क्लैरिफिकेशन छप जाता था और बात वहां पे खत्म हो जाती थी। अब जो है स्टोरी में गलती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसको अरेस्ट करो। और बाज दफा सरकारें भी जो है केस फाइल कर देती हैं। कोविड के टाइम में हम लोगों ने ट्रैक किया अलग अलग प्रदेशों में, तमिलनाडु से लेके अंडमान तक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, कि किसी ने रिपोर्टिंग कुछ की जो राज्य सरकार को अच्छा नहीं लगा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा नहीं लगा। कोयम्बटूर में एक वेबसाइट, छोटा सा वेबसाइट है, उन्होंने स्टोरी छापा कि पीडीएस जो राशन की दुकान है, लॉकडाउन के टाइम में राशन की दुकान में खाना नहीं, ये अनाज नहीं पहुंच रहा है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। बजाय इसके कि वो उस समस्या का समाधान निकाले और राशन की दुकानों में जो है ये सही मात्रा में अनाज सरकार को पहुंचा देना चाहिए था। मुकदमा उस रिपोर्टर के खिलाफ दर्ज किया गया कि इन्होंने ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। अंडमान में सबसे मजेदार केस था कि वहां के एक रिपोर्टर है, उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि वहां पे एक सेंटिनल करके अखबार है, उस अखबार में खबर छपी कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से फोन पे बात किया और जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो कोविड ग्रस्त था। ठीक है, तो पुलिस ने उस आदमी पे केस फाइल किया कि आप जो है लॉकडाउन के प्रोटोकॉल वायलेट कर रहे हो, क्योंकि आपने फोन पे बात किया। तो ये खबर छपी, छोटी सी खबर सेंटिनल अखबार में, और उस चीज का मजाक इस जर्नलिस्ट ने ट्विटर पे उठाया कि देखो ये पुलिस वाले इतने बेवकूफ हैं, उनको पता नहीं कि कोविड फोन लाइन से नहीं फैलता है और आप क्वारंटीन कर रहे हो किसी को क्योंकि उसने फोन पे किसी से बात किया। आपको ताज्जुब होगा कि उस पत्रकार के खिलाफ 1.5-2 साल तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत केस फाइल किया गया और इनको कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके मामले को क्वॉश करना पड़ा 1.5-2 साल के बाद। मतलब एक अटली बेबुनियाद फजूल का केस जो पुलिस ने इसलिए फाइल किया क्योंकि उनको मजाक का निशाना बनाया गया, और 2 साल तक जो है ये लड़का इसको केस लड़ना पड़ा। और ये एक पैटर्न सा बन गया है कि कहीं आपने कोई स्टोरी की और इसमें अलग अलग जैसे लीगल केसेस को एज अ हैरेसमेंट फाइल किया जाता है कि आपने कहीं कुछ किया तो आपको मिजोरम में जाके केस जो है फाइल किया जाएगा, तो आप
यहाँ से एजॉल चक्कर काटते रहिए, केस लड़ते रहिए. तो ये these are all occupational hazards that you will confront as journalists, as reporters, especially when you cover issues like communal violence or issues of communalism. But it is essential that you have to be truthful, stick to the facts, and be fearless. अगर प्रधानमंत्री तकरीर देते हैं इलेक्शन के टाइम में कि कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो आपका मंगलसूत्र जो है छीन के, आपकी जमीन छीन के उन लोगों को दिया जाएगा जो घुसपैठिए हैं और जिनके बच्चे ज्यादा हैं. ये प्रधानमंत्री का बयान था बनासकांठा में. और 3 हफ्ते बाद वो इंटरव्यू देते हैं कि अरे मैंने तो मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ वही किया कि भाई जिनके बच्चे ज्यादा हैं, तो मैंने तो मुस्लिम कहा ही नहीं. एज ए रिपोर्टर अगर आप सच्चाई को अपने पाठकों तक पहुंचाने का साहस नहीं रखते हो तो आप इस प्रोफेशन को छोड़ दीजिए. अगर झूठ का सामना करने में आप में वो कुव्वत, आपकी कैपेसिटी नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर आप गलत प्रोफेशन में. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे अभी आप रिपोर्टर, अभी आप एंटर करोगे, मतलब ये जिम्मेदारी तो बड़े एडिटर्स का है और मैं उनकी बात कर रहा हूँ. मतलब जिन एडिटर्स या एंकर्स को मोदी साहब ये जवाब दे रहे हैं कि भाई मैंने तो मुसलमान बोला ही नहीं, और उस जवाब का खंडन या पर्दाफाश इतनी आसानी से वो रिपोर्टर कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया. तो ये पत्रकारिता किसी काम का नहीं है, इसका कोई सोशल फायदा नहीं है, इससे समाज के बेहतरी का कुछ इसमें रोल नहीं है. तो सच्चाई बोलना, ईमानदारी से रिपोर्ट करना, किसी से डरना नहीं, एक बायस आपकी रिपोर्टिंग में नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए. ये तरीका है कम्युनलिज्म के खिलाफ जर्नलिज्म यूज करने का. बट द मेन थिंग आई वांट टू कम बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड विद कि आप एक्टिविस्ट नहीं, मतलब यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट अ एंटी कम्युनल एक्टिविस्ट. आपका काम नहीं है कि आप देश भर में कम्युनल हार्मनी फैलाएं. एज अ बाय प्रोडक्ट अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो 100% कम्युनल हार्मनी बढ़ेगा इस देश में. और अगर आप अपना काम गलत तरीके से करोगे तो 100% इस देश में सांप्रदायिक हिंसा, नफरत और ध्रुवीकरण फैलेगा. तो मेन बात है कि आप प्रोफेशनल अपना काम करें, ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करें, सच, दूध का दूध, पानी का पानी आपकी रिपोर्ट में आना चाहिए. हाँ, एक जिम्मेदार तरीके से आपको रिपोर्ट करना चाहिए, और जिम्मेदारी का पैमाना क्या है वो सिचुएशन तय करेगा. एक जमाने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल होते थे कि दंगे फसाद में आप कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई नहीं करोगे. इसलिए ये अभी भी दिखता है कि अखबारों में मुसलमान या हिंदू नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे वर्ग विशेष, एक खास संप्रदाय, एक समुदाय विशेष, ऐसे फ्रेज यूज किए जाते हैं जो उस गाइडलाइंस के तहत चल रहा है. उसकी वजह या उसका रेलेवेंस एक था, उसकी प्रासंगिकता थी उस टाइम में जब कम्युनल राइट वाकई में एक राइट होता था, जब दो गुटों के बीच में झगड़ा या झड़प. लेकिन आज के दौर में गुजरात को या दिल्ली 84 को हम उसको राइट नहीं कह सकते. ये टारगेटेड किलिंग्स हैं जहां पे धर्म के आधार पे किसी को निशाना बनाया जा रहा है. और अगर धर्म के आधार पे किसी को निशाना बनाया जा रहा है और अगर आप उस चीज को अपने पाठकों से छुपाओगे तो ये भी बहुत गलत बात होगी. कितना अजीब लगेगा अगर हम कहेंगे कि भाई हिटलर ने 6 मिलियन वर्ग विशेष, मतलब 6 मिलियन लोगों को मारा जो एक वर्ग विशेष के थे.
इससे क्या किसी को पता चलेगा? उनको टारगेट किया गया क्योंकि वो यहूदी थे। और अगर आप इस दिल्ली में 1984 में जिनका कत्ल हुआ, दे वर टारगेटेड बिकॉज दे वर सिख। इस फैक्ट को अगर आप पाठकों से छुपाओगे तो सबसे पहले लोग अज्यूम करेंगे कि भाई मरने वाले जो है वो हिंदू भी थे, सिखों ने हिंदू को मारे होंगे। लोग अलग अलग चीज अज्यूम करते हैं। और दूसरी बात की जो एक टारगेटिंग जो हो रहा है पॉलिटिकल बेसिस पे, इस चीज की सच्चाई भी जो है पाठक या दर्शक नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए एक रिपोर्टिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आप तथ्यों को पेश करेंगे ताकि एक ऑब्जेक्टिविटी, एक डिस्पैशनेट प्रेजेंटेशन हो, सिचुएशन फ्लेयर अप ना हो, लेकिन पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। और ये बात उनसे, अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही, अगर पुलिस प्रशासन के देख रेख में कत्लेआम हो रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, तो ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और उस वक्त आपको भूल जाना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। आप सिर्फ पत्रकार हो। और पत्रकार जब अपना काम ऑनेस्टली, ऑब्जेक्टिवली, डिस्पैशनेटली करता है, तो मुझे लगता है कि वो बिना सोचे वो संविधान की भी रक्षा कर रहा है, डेमोक्रेसी की भी रक्षा कर रहा है, और कम्युनल हार्मनी की भी रक्षा करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा कि आपने कहा, जर्नलिज्म आज के दौर में बहुत करेज की बात है, एंड सर इट्स डेफिनेटली ट्रू। एक लेखक ने कहा था कि मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। एंड इट्स माई प्लेजर टू टेल यू सर कि आपके सामने बैठे यंग एंड एस्पायरिंग जर्नलिस्ट जिनके हाथ में भारत की पत्रकारिता का भविष्य है, हम सभी अपनी नज़रों में तूफान भर रखे हैं हमारे भारत के उज्जवल भविष्य के लिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रश्न होगा सर के लिए। आइडियोलॉजिकली लीनिंग होती है या फिर एक पॉलिटिकल अफिलिएशन होता है, बट वायर जो है तो वो स्कूप्स की तरफ नहीं जाता, वो रिसर्च स्टोरीज की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर कुछ घटना घटी है तो वो वहां जाके ऑन ग्राउंड या जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं। तो सर, यही चीज को अगर हम कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कम्युनलिज्म और रेडिकलाइजेशन के बीच का जो फर्क है, जो अंतर है, वो समझे। तो सर, इस पर आपकी क्या विचार? मुझे लगता है कि आप व्हाट इज द फ्रेज इन इंग्लिश, जैसे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, आप बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण कर रहे हैं। क्योंकि कम्युनलाइजेशन और रेडिकलाइजेशन मतलब ये एक ही प्रोसेस के दो फेजेस या स्टेजेस हैं। रेडिकलाइजेशन अक्सर होता है रेडार के बिलो द रेडार। फॉर एग्जांपल, हम लोग नहीं जानते व्हाट्सएप पे क्या चीज़ें घूम रही हैं, कौन सी वीडियोस किस कमेंट्री के साथ सर्कुलेट किए जा रहे हैं। वो रेडिकलाइजेशन का एक जरिया है कि झारखंड में 12 साल पहले किसी ने किसी का कत्ल किया, उसका वीडियो किसी ने उतारा, और 12 साल बाद उस वीडियो को घुमाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू लड़की को मुसलमान मार रहा है, और उसको देख के फिर न जाने कितने लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं। अभी तक उन्होंने अपने आप को हिंदू रक्षक जैसा अपने आप को नहीं समझा, लेकिन उस वीडियो देखने के बाद उनको लगता है कि भाई मुझे ये कुछ करना चाहिए, तो वो रेडिकलाइजेशन है। लेकिन ये कम्युनलाइजेशन भी यही है। रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन जो है, एक ना एक दिन इसका एक पब्लिक एक्सप्रेशन हो जाता है जब कहीं पे वायलेंस होता है। रिपोर्टर का रोल दोनों लेवल पे रहता है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हम लोग स्कूप करते हैं, मतलब हम लोग भी इन्वेस्टिगेटिव, और द टू आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब बहुत सारी, जैसे अभी कल हमने एक स्टोरी पब्लिश किया बाय देयर टू फ्रीलांस बॉयज हु राइट फॉर अस, अलीशान जाफरी और शायद दूसरा मैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। दो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने गैंग कल्चर पे रिसर्च किया कि गैंग कल्चर किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है।
बाय गैंग कल्चर आई मीन ये लॉरेंस बिश्नोई का जो कल्ट है, जो पिछले महीने काफी मीडिया में देखने को मिला, खासतौर पे कनाडा के जो इंसिडेंट्स के बाद बिश्नोई का नाम बहुत चला मीडिया में, और अलीशान जाफरी और उसके सहयोगी ने पाया कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग टूल्स हैं जहाँ पे बकायदा कंपनीज छोटे छोटे बच्चों को गैंग कल्चर के प्रति रेडिकलाइज कर रहा है कि आप भी, मतलब आप जैसे आप लॉरेंस बिश्नोई को एक रोल मॉडल मानने लगते हो कि मैं भी वैसे बनना चाहता हूँ, और ऐसे 3-4 और गैंगस्टर हैं जिनके टी शर्ट्स बन रहे हैं, कंपनीज उसको बेच रहा है, फेसबुक उसको प्रमोट कर रहा है, इंस्टाग्राम में रील्स बन रही हैं। इस स्टोरी पे इन दोनों रिपोर्टर्स ने शायद 2 हफ्ते लगाए ट्रैक करने के लिए, और तो ये हमारे लिए स्ट्रिंगर भी है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी कर रहे हैं, ये स्कूप भी है एक तरह से, इसमें बहुत सारा रिसर्च गया, और ये रेडिकलाइजेशन को कवर कर रहा है। रेडिकलाइजेशन नॉट इन द रिलीजियस सेंस, बट कि भाई यंग लड़के क्यों जो है वो गन कल्चर के फेवर में अपना भविष्य देख रहे हैं कि मैं भी वैसे बनना चाहता हूँ। तो लेकिन इस चीज को एज एडिटर्स डूइंग फैक्ट चेक, अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये स्टोरी कौन है ये कंपनीज, क्या उन कंपनीज को हमने कांटेक्ट किया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे, जैसे जब हमने ट्विटर या इंस्टाग्राम को इतला किया कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है इसके प्रति, आप क्यों गन कल्चर के सपोर्ट में कंपनीज को एडवर्टाइजिंग करने दे रहे हो, तो कुछ पेजेस बंद हो गए। जैसे हमने सवाल पूछा तो उसके अगले दिन जो है वो पेजेस टेक डाउन हो गए। तो ये भी एक इसका एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट है रिपोर्टिंग का। सो आई थिंक दैट्स द वे आई वुड चूज टू आंसर योर क्वेश्चन। Sir, a small follow-up to that Yeah. thing only. As you have mentioned कि stringers पर rely करते हैं, and you have mentioned the term of stringers. So sir, कहीं ना कहीं don't you think stringers are the main reason for our press freedom ranking, which is somewhere around 161 in so many countries? क्योंकि the paychecks for stringer is when their story gets published, तभी they will get paid for that. Yeah, okay. But when it is around the way, मतलब यही सिनेरियो अगर उल्टा होता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंगर विल आल्सो लुक फॉर अ न्यूज़ जिसके ज्यादा चांसेस है पब्लिश होने। नहीं तो इसका ये कनेक्शन मैं समझता हूँ कि स्ट्रिंगर्स का जो पेमेंट है ज़्यादा होना चाहिए, और जो फ्रीलांस, बल्कि वैसे फ्रीलांस रिपोर्टर, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, आज के दिन में कंपेयर टू 20 ईयर्स, जैसे जब हमने कदम पहले रखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन दिनों में फ्रीलांसर्स ना के बराबर थे। मतलब उनको किसी भी अखबार में, पोर्टल्स तो थे नहीं, किसी भी अखबार में फ्रीलांसर को जगह नहीं मिलती थी। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट काम करना चाहते थे तो आप किसी न किसी अखबार के साथ आपको जुड़ना जरूरी था, या मैगजीन के साथ। आज के दिन में अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप में काबिलियत है, आप में थोड़ी सी ईमानदारी है और बहादुरी है, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं मतलब लिटिल बिट ऑफ इनोवेटिवनेस, तो आप एक रीजनेबल लिविंग कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। हिंदुस्तान का जो प्रेस रैंकिंग जो घटा है लगा कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 10-12 इयर्स, इसकी वजह यही है कि प्रेस फ्रीडम को अटैक किया जा रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब केसेस फाइल किए जा रहे हैं, जर्नलिस्ट अरेस्ट, जैसे सिद्दीक कापन जो है 2.5 साल तक जेल में रहा। क्यों? क्योंकि वो हाथरस जाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे एक दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ और उनका कत्ल हुआ, और वहां पहुंच के मलयालम में स्टोरी लिखना चाह रहे थे। जाने से पहले उनको रोक दिया गया है। उनके खिलाफ जो है यूएपीए के तहत एक झूठा मुकदमा फाइल किया गया, और 2.5 साल तक वो जेल में रहे। तो इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान की प्रेस रैंकिंग घट रही है? ये है, और भी जैसे मोहम्मद जुबैर के खिलाफ अब राजद्रोह का केस, इससे और जो है नीचे इफेक्ट करेगा। गौरी लंकेश का कत्ल जो 10 साल के बाद अभी तक सॉल्व नहीं, अभी तक जो है जिन्होंने उनका कत्ल किया उनको सेंटेंस नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जर्नलिस्ट सेफ्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, केसेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट,
इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी एक फैक्टर है, जैसे आरएसएफ का जो रैंकिंग है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इज आल्सो अ फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर. इसमें ये नहीं लगता कि आपको कि मीडिया पहले एक पत्रकारिता का व्यवसाय था, संभाल कर कुछ होता था, लेकिन आज मीडिया एज ए खासकर जिसको हम कोट अनकोट मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, वो अनेक उद्योगों का अपना संरक्षण करने के लिए वो उद्योग लोगों के हाथ में है आज. और ये पत्रकारिता की एक कॉटेज इंडस्ट्री जो आप लोग चला रहे, बहादुरी से सलाम है, लेकिन वो कैसे बरकरार है? नहीं, मैं समझता हूँ कि आपका जो आपने जो कैरेक्टराइज किया कि कॉर्पोरेट एक तरह से ग्रुप है जो इस चीज को चला रहा है, एक क्लब है उनका, ये एक बिग मीडिया का, मैं मेन स्ट्रीम यूज नहीं करता हूँ, मैं बिग मीडिया बोलता हूँ, क्योंकि मेन स्ट्रीम हम लोग मेन स्ट्रीम, बिग मीडिया. सो बिग मीडिया विच इज कॉर्पोरेट मीडिया इज, ये तो हकीकत है, लेकिन साथ साथ शायद इनका जो शुरुआती जो ओपनिंग था कि भाई एक गोल्डन ईरा शायद कभी था ही नहीं, है ना, ऐसे आपने कुछ बोला था ना कि एक स्वर्ण युग. और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मुझे याद है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था 1995 में, और उन दिनों भी हालत काफी खराब था. और जब मैंने एक मुझे मौका मिला, उन दिनों मालिक था समीर जैन, तो समीर जैन के साथ मेरी बहस हो गई कि भाई ये आप कैसा अखबार चला रहे हो. मेरे सिर्फ 2 साल थे उस अखबार में, 97 की बात है. मैंने कहा ये क्या अखबार आप चला रहे हो, गरीबों का न्यूज़ फ्रंट पेज पे आता ही नहीं है, और ये सारा जो है प्रिविलेज का ही है अखबार है ये. तो मैंने कहा कि पुराने ज़माने के अखबार इतने अच्छे थे. तो उसने कहा एक मिनट रुको तुम, और उसने अपने सेक्रेटरी को बोला आप आर्काइव में जाओ और 40 साल पुराना किसी भी अखबार को तुम उठा के लाओ. तो वो पीए गया आर्काइव लाइब्रेरी में, और 1978 या 79 का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के ले आया, और वो पेज वन उसने मुझे दिखाया. लीड स्टोरी वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोज टू पोलैंड, और वो इतना बड़ा छपा प्रेसिडेंट. अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे सिस्टम में इतनी अहमियत रखता भी नहीं है कि प्रेसिडेंट कहाँ जाए नहीं जाए, इससे आम आदमी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रपति पोलैंड गए, ये बहुत बड़ी खबर थी. उसके नीचे जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री, मतलब उस युग में भी जो है वो अखबार कुछ खास था नहीं. हालांकि हमेशा हर पीढ़ी को लगता है कि भाई पहले पीढ़ी वाले जो चीजें थी वो ज्यादा, मिठाइयाँ और ज्यादा स्वादिष्ट होती थी, और अखबार और ज्यादा अच्छे होते थे, फिल्में भी ज्यादा अच्छी बनती थी, और कुछ हद तक सही भी बात है. लेकिन मतलब पुराने ज़माने में बहुत सारी अच्छी फिल्में बनती थी, बहुत सारी ख़राब फिल्में भी बनती थी, और आज भी ऐसे शायद रेशो अलग हो गया है, अब ख़राब फिल्में ज़्यादा है, बेहतर फिल्म कम है. लेकिन जो सवाल आप पूछते हैं कि भाई छोटा जो महकमा, छोटा इदारा जैसे हमारा है, हम कैसे सर्वाइव करते हैं. और सबसे मज़े की बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने वायर का जिक्र किया शुरू में, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, और इससे सबसे ज़्यादा साहस हमको मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं. हर ज़ुबान में, हर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं छोटे बड़े जो अपना काम ईमानदारी और बहादुरी से कर रहे हैं. और हर कोई जो है साधन कम हो ज़्यादा हो, जैसे नितिन जी अभी यूट्यूब में अपना वीडियो चैनल जो है वो उस पर कोशिश कर रहे हैं. तो मेरा मैसेज आप छात्रों से ये है कि भाई नौकरी, किस किस्म की नौकरी आपको मिलेगी ग्रेजुएशन के बाद, इस पे ज़्यादा आप फिक्रमंद मत रहिए, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं, जो बड़े अखबार हैं, वहाँ पे आपको पत्रकारिता करने का मौका कम ही मिलेगा. वहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा, अंकुश ज़्यादा होगा, और आज़ादी जो आपको मिलनी चाहिए स्टोरी परस्यू करने के लिए, शायद उतनी आज़ादी आपको नहीं मिलेगी. लेकिन आज के दौर में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका अगर आप कायदे से इस्तेमाल करना सीखें, रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, तो आप खुद अपना काम ग्रेजुएट करने के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं. सत्ता को सत्य कहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सत्य को सत्य कहना. अच्छा, पहले भी हम लोग सत्य को सत्य कह सकते थे, लेकिन उस बात को जनता तक पहुंचाना मुश्किल था.
सत्ता को सत्य, मतलब या स्पीक ट्रूथ टू पावर, सत्य। लेकिन उस जमाने में भी हम कर सकते थे, 70s में, 60s में, 80s में भी। लेकिन उस बात को आप बड़े पैमाने में कैसे आप फैला सकते थे? मतलब जब हमने वायर शुरू किया 2015 में, तो हमारे सामने विकल्प था कि भाई अखबार स्टार्ट करो, लेकिन अखबार स्टार्ट करने के लिए कम से कम 20-15 करोड़ तो चाहिए होते हैं। विकल्प था कि टीवी चैनल खोलो, टीवी चैनल के लिए कम से कम 80-90 करोड़ आपको चाहिए। हमने पूछा कि वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए कितना है, तो किसी ने कहा कि भाई 2-3 लाख में हो जाएगा। तो हमने कहा चलो यही करते हैं। तो 2-3 लाख में हमारा इन्वेस्टमेंट था। शुरू में जो है लोग वैसे ही जुड़ने लगे, हमारे पास पैसे नहीं थे। धीरे धीरे जो हम ग्रो करते गए, 10 साल के बाद हम अभी एक ऐसे पोजीशन में, अभी भी हम फाइनेंशियली बहुत छोटे हैं। हमारा महीने का खर्चा मुश्किल से 40-42 लाख होगा, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक दिन में उससे ज्यादा खर्च करता होगा, या कई गुना ज्यादा उससे ज्यादा खर्च करता होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारी स्टोरीज हैं, जो हमारी टीम कर रही है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में, मराठी में हमने ट्राई किया, लेकिन वो हम लोग फाइनेंशियली उसको सफल नहीं बना पाए। अब तेलुगु में हम लोग जनवरी में तेलुगु वार लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। वीडियो हमारा खूब चल रहा है। तो इससे जो है करोड़ों लोगों तक हम लोग इस बात को पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ये रास्ता दिखाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है, जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म आप सीख रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़े चैनल में जाके जॉब ले लें। आपको मिल जाए, अगर आपको वहाँ आज़ादी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको वो जॉब, पसंदीदा जॉब आपको नहीं मिलता है एक पसंदीदा जगह में, आप फिक्रमंद मत रहिए। आप मतलब ये और भी विकल्प है आपके साथ। जी। Last month I had a chance to go to Mumbai for a program where I met Sukanya Shanta, a reporter from The Wire. So during her speech, she said that how can a reporter be objective while reporting for communal violence? So what are your opinions on objectivity in journalism? Yeah, no, that's a good question. You see, objectivity, we have to realize what we mean by these terms, right? Objectivity, I would say the principal task is that you have to be honest about the facts. You have to be accurate. What is normally meant by objectivity or balance is कि आप दोनों साइड का व्यू, मतलब you should give equal space to all sides. And the definition of all sides is what? जैसे कि अजमेर शरीफ में अभी ये स्टार्ट हो गया है कि भाई अजमेर शहर में अजमेर शरीफ जो एक कदीम पुराना दरगाह है, शायद दुनिया में सबसे फेमस अगर कोई सूफी दरगाह है वो अजमेर शरीफ है। हिंदुस्तान के लिए बहुत एक फख्र और एक प्राइड की बात है कि भी सबसे फेमस जो है, जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। और इसकी जो धार्मिक प्रकृति है, ये कहीं दूर दराज से डाउट में नहीं है। और एक आदमी जाके केस फाइल करता है कि भाई ये शिवलिंग है, और जब हम रिपोर्ट करेंगे तो so conventionally what people mean by being objective is आप शिवलिंग वाले को भी उतनी अहमियत दोगे जितना आप फैक्ट्स को दोगे, जो हकीकत है, जो हिस्ट्री है। So it is the job of a reporter to critically evaluate. तो शिवलिंग वाला जो बंदा है उसके कोट्स आप ले लो, लेकिन उस कोट्स के एनालिसिस भी आपको करनी पड़ेगी, उससे आप पूछताछ भी करना पड़ेगा कि भाई आपको पहले ये केस कब सूझा कि आपको फाइल करना चाहिए, and all the other details, so that you have to be present the facts. But when people say you are biased, what they mean is कि भाई आपने स्टोरी को ऐसे रिपोर्ट किया, मतलब जब कोई कहता है कि आप biased हो, आपकी रिपोर्ट biased है, this means कि जो सच्चाई आपने निकाला है वो उनको पसंद नहीं है। जैसे नवंबर 84 के बारे में जिस तरह से मैं बात करता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के एक्टिविस्ट ने सिखों का कत्लेआम किया।
कांग्रेस वाला कहेगा यू आर बायस्ड, यू आर नॉट ऑब्जेक्टिव, आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। आपकी बात हम सुनेंगे, जैसे राजीव गांधी की बात को मैंने कोट किया, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलेगी, लेकिन क्या मैं इस बात को स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ मान लूं कि भाई वाह वाह क्या क्या तर्क दिया उन्होंने, और इस तर्क की वजह से सारा जो हमारे मन में जो डाउट है वो सब खत्म हो गया है। So this is probably what she meant. People who are very set in them, and this is a problem that you encounter in any issue. जैसे बहुत सारे लोग हैं, टाइम टू टाइम मुझे मेल मिलते हैं, मेल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान में मर्दों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और आपका प्रो वुमेन बायस है। So you're covering a story of domestic violence, your dowry death, and अभी so they will demand कि भाई जिसने बीवी को जलाया है डाउरी के मांग को चलते, आप उसकी बात को ज्यादा अहमियत क्यों नहीं दे रहे हो? This is what they mean. So these judgment calls you have to make, but I would say that this to do that does not mean you're not being objective. But objective does not mean being objective does not mean you're doing this kind of a balance in which it is impossible to say what is right, what is wrong. It is possible to say there are facts which happen, and it is possible to report that. And of course, you give context. If there is a fact which goes against the truth you are reporting, you should evaluate it. But at the end of the day, जो story निकलता है, again different topic, but New York Times ने 3 हफ्ते पहले एक story किया, in which they looked at X-ray photographs of victims of Israeli firing in Gaza. और उन्होंने तकरीबन 40-50 डॉक्टर से बात किया जिन्होंने उन बच्चों का इलाज किया गाजा में, और उन डॉक्टरों ने कहा कि भाई हमने खुद विक्टिम्स को देखा है, एक्सरे और एक्सरेज भी पेश कर रहे हैं जहां पे 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को गोली से जो मौत, मतलब सर पे गोली लगी, छाती पे गोली लगी, which means ये एक्सीडेंटल फायरिंग में नहीं हुआ है। अगर किसी 3 साल के बच्चे को हेड वुंड से किल किया जाता है, this means कि उसको टारगेट किया गया है। So they interviewed 50 doctors who said that we have hundreds of such cases, and they presented and they told the Israelis what do you have to say about this, और Israelis ने अपना कुछ बोला, वो भी कोट हो गया, but जो headline finally दिया वो दिया कि भाई evidence emerges of targeted killing of children। उसको देख के जो है वो इजरायली कहते हैं कि आप बायस्ड हो। न्यूयॉर्क टाइम्स जिसके खिलाफ अक्सर एलिगेशन लगता है कि आप एंटी फिलिस्तीनी हो, प्रो इजरायली, उन्होंने वो स्टोरी किया तो इजरायलियों ने उन पे इल्जाम लगाया। सो आई थिंक इफ एज अ जर्नलिस्ट वी फाइंड कि कोई हमसे खुश नहीं है, हर कोई नाराज है, तो कहीं ना कहीं शायद आपने काम ठीक किया होगा। या सर एक्चुअली पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया में 2 केसेस हुए हैं जो अक्सर होते आए हैं कि एक तो अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान हाई कोर्ट ने हियरिंग सुनने के लिए तो आया, मतलब एडवोकेट विष्णु जैन की बात मानी उन्होंने, आगे की बात जो होगी वो सबको पता है क्या ही होगा, उसका फिर से सर्वे होगा एंड ऑल। और दूसरी घटना हुई हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अब नॉर्मली हो चुका है कि पथराव एंड ऑल। सर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या सिर्फ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्ट, सर मैं तो अखबार हूँ, मेरी फितरत है झुकना और रखना, बिकॉज मुझे भी आगे लाइक अखबार को 5 रुपए में तो बिकना ही है। सर एडवोकेट विष्णु जैन जैसे लोग और डीवाई चंद्रचूड़ जैसे, आई हैव नो वन टू रेज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ जस्टिस, एंड इंडिया में हमें तो अलाउड भी नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एक केस फाइल होता है कि ये शिंदे ग्रुप या अजित पवार ग्रुप के जो एमएलएज है वो अपात्र है, उसका रिजल्ट आने में 2 साल लग जाता है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जो केस फाइल होता है उसका रिजल्ट 2 दिन में एकदम फटाक से आ जाता है। सो सर आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चन अगेंस्ट द जुडिशरी, बट डू यू थिंक क्या सिर्फ जर्नलिस्ट इस केस के लिए बायस है या हमारी जुडिशरी भी कहीं ना कहीं फेल हो रही है? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस देश में अभी तक आपको पूरा हक है कि आप जुडिशरी से सवाल पूछ सकते हैं, आप जुडिशरी के खिलाफ बयान भी दे सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते वो ये है कि आप नहीं कह सकते कि जज ने जो फैसला दिया वो रिश्वत खा के लिया या किसी बायस की वजह से।
तो अगर आप कहें कि भाई चंद्रचूड़ का फलाना फैसला या फलाने जज का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि, और आपने कोई ऐसा मोटिव एट्रीब्यूट किया, वो अलाउड नहीं। Sir, वो if आपको I raise a question, why या they नो सर, नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने सवाल उठाया उसमें कोई, यू डोंट हैव टू बी अपॉलोजेटिक अबाउट इट। पूरा आपको हक है एज अ नागरिक एंड एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। सवाल जो आपका है वो बहुत दुरुस्त सवाल है। वो हमारे विषय से थोड़ा सा अलग चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं हिंदुस्तान में जो हमारे आंखों के सामने हो रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा है, और कानून तोड़ने वाले अक्सर वही लोग हैं जिन्होंने कसम खाई है कानून का पालन करने का, ठीक है। तो ये हकीकत है, और शायद हर समाज में, हर कंट्री में ऐसे होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए यूएस में, वहां पे भी आप थोड़ी देर के बाद आप ये ऐसी घटनाएं देख सकते हो, लेकिन हाँ, वहाँ की इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है कंपेयर टू आवर कंट्री, लेकिन वहां पे भी वो फेरबदल वो करेंगे। लेकिन जर्नलिस्ट का मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से अपने हाथ नहीं धो सकते कि भाई जुडिशरी ऐसे कर रहा है, पुलिस ऐसे कर रहा है, तो ये हमारा कसूर नहीं है। जुडिशरी अगर कोई चीज गलत कर रहा है, पुलिस अगर कोई चीज या प्रशासन कोई चीज गलत कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको पॉइंट आउट करें। हाँ, हमारी बात को शायद कोई ना माने, हमारे बातों का असर फौरी तौर पे आपको दिखाई ना दे, अक्सर आपको उसका विपरीत आपको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि मोहम्मद जुबैर ने जब ट्वीट किया, उसको लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं यति नरसिंहानंद पे केस हो जाएगा, उल्टा उस पे केस हो गया। तो ये भी हकीकत है इंडिया का, लेकिन फिर भी हमको अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। मैं अखबारों को, मतलब जो अखबार ऑनेस्ट तरीके से, या जो टीवी चैनल्स ऑनेस्ट, और ज्यादा मुझे लगता है कि मोस्ट गिल्टी आर द टीवी चैनल्स। अखबार फिर भी जो है उन पे आप इल्जाम लगा सकते कि आप बहादुर नहीं हो, आप सच्चाई को थोड़ा सा दबा देते हो, कड़वाहट को आप छिपा देते हो। लेकिन जो हमारे बड़े चैनल हैं वो झूठ का खुलम खुला प्रचार करते हैं, वो सांप्रदायिकता खुल के फैलाते हैं। आपने देखा होगा हर शाम जो है, अच्छा 7 to 10 स्लॉट में आपको खबरें कम मिलेंगी और स्टूडियो डिबेट ज्यादा मिलेंगे। उन स्टूडियो डिबेट्स में आप गिन के देख लीजिए हफ्ते में हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक कितने हैं। हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक आपको बहुत मिलेंगे। और कल में वायर में हमारा डिस्कशन था, एमआर शमशाद जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हमने उनका और हमारा इंटरव्यू एक कॉलीग ने लिया ऑन दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो हमने कहा उनसे कि भाई आप काफी बिजी होंगे, बहुत चैनल्स आपको डिमांड कर रहे, कहते नहीं, क्योंकि चैनल जो है, चैनल को पता है कि हाँ किसी मुसलमान एक्सपर्ट को बिठाना जरूरी है, नहीं तो डिबेट नहीं होगा। लेकिन कौन सा मुसलमान वो चुनेंगे, वो सबसे जो है एक उग्र किस्म का, एक अननोन, एक लैकिंग नॉलेज, ऐसे सो कॉल्ड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चुन के बिठाएंगे ताकि एक वहां पे अच्छी लड़ाई हो जाए। तो चैनल्स का ये काम है और मैं उनको दोषी ठहराता हूँ, और उनके खिलाफ आवाज उठाना मुझे लगता है कि हर पत्रकार का फर्ज है। लेकिन ये हमारे लिए बहाना नहीं बन सकता कि भाई चंद्रचूड़ ने ऐसे किया और फलाने जज ने वैसे किया और विष्णु जैन ने ऐसे किया। जिम्मेदारी हमारी भी है और ईमानदारी से हमको फिर भी रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अजमेर शरीफ का जो केस ये शुरू करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये एक अलार्म की तरह फंक्शन करेगा हमारे देश में, क्योंकि अभी तक जिन मस्जिदों को टारगेट किया है लोगों ने, वो या तो बहुत ही लोकल मस्जिद है जैसे संभल का है, या एक ऐसा जैसे बाबरी मस्जिद जो एक राष्ट्रीय स्तर पे उसको बहुत बड़ा इशू बनाया गया, लेकिन उससे पहले शायद किसी ने उसका नाम नहीं सुना होगा। लेकिन अजमेर शरीफ को अगर आप इस तरह से टारगेट करेंगे, और अगर इस देश का प्रशासन, इस देश की जुडिशरी चुपचाप बैठे रहेगा, तो यूँ समझिए कि बहुत ही खतरनाक दौर हिंदुस्तान के लिए शुरू हो गया है। क्योंकि फिर जो हम लोग मजाक करते थे 20 साल पहले कि भाई ये ताजमहल को भी ले लेंगे, ताजमहल को भी मंदिर बना देंगे, तो ये दौर शुरू हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं अगर इसी तरह का चलता रहा। तो इसलिए पत्रकार का अपना काम करना बहुत जरूरी है।
समय के पाबंदी के कारण हम प्रश्न ये रोकते हैं। आप वरदराजन सर को आज शाम गांधी भवन समर्थ नगर में फिर से मिल सकते हैं। वहाँ पर विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी और चुनौती। आप ज़रूर जाइए, आपको आपके लिए वो सेशन इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाउ आई कॉल अपॉन तनुष्का कड़ू फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। As we come to the conclusion of this enlightening guest lecture, it is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our distinguished guest speaker, Mr. Siddharth Varadarajan and Mr. Nitin Brahme sir, for sharing your valuable insights. Your knowledge and experience have provided us with wealth of information and inspiration. A sincere